इंजीनियर ने जो मिनी गोट का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में सवाल करना है कि یہ जन्नत بہت के ہی بری अंदर بات में ہے، توحید کے خلاف یہ بات ہے. کسی کو منی گاڈ بولنا کہ یہ بڑا خدا ہے، یہ چھوٹا خدا ہے، یہ کتنی بری بات ہے. معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. کسی کے لیے یہ تعبیر استعمال کرنا انتہائی غلط بات. ہم کہتے ہیں لا मिनी الہ गोट الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو کوئی معبود نہیں ہے. نہ کوئی چھوٹا معبود ہے، نہ کوئی بڑا معبود ہے. نہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی ہے، نہ اللہ سے چھوٹا کوئی ہے. یہ بہت ہی بری تعبیر ہے. اور انجینئر کے جو فالوورز ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ بھائی انجینئر توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے، ذرا اس سے بولو کہ اس سے رجوع کر لے. ایک عام سے آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی انسان کو منی گاڈ بولنا بہت ہی جرات والی بات ہے. मिनी تو गोट اس سے इसलिए कहा है कि मिनी गोट इसलिए कहा सरफराज है भाई कि जुमला बोल रहे इंसान के इससे अंदर तौबा कर ले. रुजू ہاں रुजू توبہ، کے بجائے اس کو توبہ ہاں کا ہاں اختیار، صحیح بات رجوع ہے، کا اس میں اختیار تو اسے توبہ نہیں. کرنی چاہیے. صحیح بات मेरा کی तो شعبان सवाल بھائی है نے کہ یہ تو ایسی بات ہے جس پر توبہ کریں. ہاں جی بولیے. میں انجینئر نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ ساری صفات انسان کے اندر میں بھی ہے، اس لیے وہ منی اللہ کے پاس کامل ہے اور اللہ انسان کی کے کوئی پاس صفت انسان کے اندر نہیں ہے. اگر اللہ کی دلیل صفت دیا کوئی ہے تو بعض بہت نام، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ صفت کا نام استعمال ہو جاتا ہے، اور بندے کے لیے بھی، بندے کی صفت کے لیے بھی وہ نام استعمال ہو جاتا ہے. یہ صرف اسما کا اشتراک ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بندے کے اندر نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ جیسے صفت علم مانتے ہے، ہیں، جیسے بھائی قدرت اللہ ہے، تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، دنیا میں انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر کا ہے، تو کیا دنیا کے انسان کو بھی منی گاڈ کہہ دیا جائے گا؟ تو اللہ نے انسان فرمایا میں فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اور بندوں کے بارے میں بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے. تو اگر قدر مشترک جو ہوتا ہے ناموں کے اندر، جو تو بہت سارے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو بندے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، تو کیا کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں انسان منی گاڈ ہے؟ یہ نہیں، بریلیوں ایک سے بات بھی سے تو بدتر برابر ہو عقیدہ گئی ہے نا. بھائی صاحب. سنیے، یہ بریلیوں واقعتاً سے بھی بریلوی بدتر اتنی ہے جرت. بات. بہت صحیح بات کریں بریلوی شیخ بھی کفایت. جی ہمت شیخ. نہیں کرتا ہے کہ اپنے ولیوں کو منی گاڈ کہتے. یہ ہاں. بریلیوں سے بھی سڑا ہوا عقیدہ ہے علی مرزا کا. سڑیل آدمی ہے، بریلیوں سے بھی بدتر ہے. ان کے باباؤں کا رد کرتا ہے، اور ان کے باباؤں سے یعنی ان کی طرف جو خرافات منسوب ہے ان سے بھی کئی گنا بڑی خرافات کا شکار ہو چکا ہے. اتنی گھٹیا بات، اتنی بےہودہ بات تو بریلیوں تک نے بھی نہیں کہی ہے. ان سے بھی گئے گزرا شخص ہے یہ. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی جو صفات انسان میں بھی ہے، جیسے علم ہے، انسان ارے کو بھی بھائی علم آپ ہے، کتنی اللہ بڑی کو بھی بات بول علم رہے ہے. ہیں. اللہ کی کوئی صفت انسان میں نہیں ہے بھائی. یہ کیوں بول رہے ہیں آپ اللہ کی صفت انسان وہی میں؟ تو کہہ رہا ہوں. اللہ کی اس کوئی کو صفت جیسے انسان میں بولتا نہیں ہے. ہے آپ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ خود اپنے آپ میں بہت بری بات ہے. وہی بس نا. کچھ نام مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندوں کی صفت ہے، دونوں میں نام مشترک ہے. اللہ کی کوئی صفت بندے کے اندر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں یکتا ہے، بے مثل ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بندے کے اندر کیسے ہوگی؟ اس کی گمراہی جیسے اور بڑھ آپ جاتی ہے. کے آپ جو پاس بھی دلیل دے علم رہے ہے، ہیں نا، اللہ اس کے کی پاس بھی گمراہی علم اور ہے، بڑھ تو جاتی برابر ہے. نہیں ہو جائے گی. اللہ اکبر، کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ؟ ہمارا علم بہت اللہ کے علم بہترین کے بات. برابر ہے. یہ توحید نہیں ہے. نہیں، یہ مرزا علی انجینئر کی تعلیم آپ، یہ آپ نے مرزا علی انجینئر سے یہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے گھٹیا کہ لوگ، اللہ یہ کے پاس توحید علم ہے، کے میرے دشمن پاس لوگ. علم ہے تو میں اللہ کے برابر ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہتا. آپ کے پاس بھی تو کچھ تو علم ہے. اگر آپ کے پاس 10 باتوں کا علم ہے، اللہ کے پاس بھی 10. اللہ بھی اس 10 بات کو جانتا ہے. تو اس 10 بات کے اندر میں اللہ اور وہ جو 10 بات جانتا ہے، دونوں کا علم نہیں برابر ہو جائے گا کہ انسان بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے. کیسے برابر ہو جائے گا؟ نہیں برابر ہوگا. انسان کیا جانتا عجیب اللہ بات کر رہے باتوں ہیں میں بھائی. برابر ہو جائے اس گا. کا تو رد یہ کرنا کہہ رہا ہوں. پڑے گا ہم کو. اس کام کو رد کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ. حل تعلم له سمیع. قرآن مجید اس کا رد کرتا ہے. ولم یکن له کفوا احد. کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں. آپ کیسے اتنی بڑی بات بول دے رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کیسے جیسے اتنی بڑی بات، آپ کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے گا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے حل تعلم له سمیع ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ کو کوئی کفو نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی برابر نہیں. یہ عقیدہ بریلیوں سے بھی بدتر عقیدہ ہے جو یہ آدمی سنا رہا، بتا رہا ہے. نہیں، میں تو انجینئر کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ تو ایسا نہیں. میں تو انجینئر کا سوال کر یہ رہا ہوں. بالکل غلط، یہ بالکل غلط بات ہے. غیر اللہ کو کسی کو بھی منی گاڈ، منی الہ کہنا یہ ایک دم غلط عقیدہ ہے. کوئی اور یہ چھوٹا بھی کہہ بڑا دینا اچھا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی گاڈ نہیں ہے. آپ جب اللہ گاڈ کے بولتے ہیں تو اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کے سامنے جب کوئی گاڈ بولتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ گوڈ جب بولتے ہیں تو وہی کہ جو پوری کائنات کو جو پیدا کرتا ہے. ہاں، تو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا وہ ایک بڑا بھی ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے گاڈ بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں آپ کے بات آتی ہے؟
अब ये जो इंजीनियर ने जो देखिए सवाल बुनियादी किया है, तौर पे अगर गॉड के लफ्ज की तहलील की जाए, जो उसका रूट वर्ड है, तारीखी जो उसका मामला है वो देखा जाए, तो गॉड का बुनियादी माना होता है जिसको मदद के लिए पुकारा जाए, किसके लिए कुर्बानी पेश की जाए, उसको गॉड कहा जाता है। जिसकी इबादत की जाए और जिससे दुआ की जाए, ये गॉड का ओरिजिनल जो उसके ओरिजिन्स हैं उस लफ्ज के, उसको जब आप देखेंगे तो ये माना निकलता है गॉड का। तो जैसे बहुत पहली बात सारे तो जो अब ये इस्लाम कह में देगा छोटा गॉड, बड़ा गॉड, मिनी गॉड, तो मिनी गॉड का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बड़ा माबूद है और दूसरे जो माबूद है वो छोटे छोटे माबूद हैं। गॉड के माना में माबूद का माना पाया जाता है, जिसकी इबादत की जाए। तो क्या ये वो लोग हैं छोटे छोटे जिनकी इबादत की जाए? हाँ, ये तो मुशरिकीन वाला अकीदा हो गया कि है एक माबूद बड़ा माबूद है, बाकी हमारे छोटे छोटे माबूद है जिनकी हम इबादत करते हैं। तो आपके पास मुशरिकीन में क्या इल्म है गलती कि थी इल्म फिर? नहीं है? आपके पास इल्म है, अरे इच्छा अल्लाह है। के बंदे, अल्लाह ताला की कुछ सिफतें इंसान की ऐसी हैं, क्योंकि हमारी जबान बहुत महदूद है, तो हम अपनी बात सिफतों को भी डिफाइन करने के लिए और अल्लाह ताला की बात सिफतों को डिफाइन करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। वो लफ्ज अल्लाह ताला के लिए भी हमने समी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, हमने भी अपने लिए समी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी हमारी अक्ल और हमारे ज़बान की महदूदियत ऐसी है कि हम अल्लाह ताला के अस्मा और अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उसको एकदम अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात को समझने के लिए एक लफ्ज़ सिर्फ़ मुश्तरक है कि वो लफ्ज़ मुश्तरक है और हमारे लिए भी वो अल्लाह हमारी सिफ़तों के लिए भी वो लफ्ज़ आ जाता है, अल्लाह ताला की सिफ़तों के लिए भी लफ्ज़ आ जाता है। लेकिन इस लफ्ज़ के इश्तिराक का माना ये नहीं है नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला हमारी तरह है। भई हमारे हाथ को भी हाथ कहा गया, अल्लाह ताला के हाथ को भी हाथ कहा गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अल्लाह ताला हमारी तरह है। कुरान मजीद में तो साफ-साफ अल्लाह ने फरमाया ना, लईसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। तो जब अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, तो कैसे किसी को मिनी गॉड कहा जा सकता है? नहीं, जैसे बरेलवी है वो जाती और कुरान में अताई अल्लाह की ताला बात ने करते कहा हैं। कि नहीं, अल्लाह ईसा कमिस्लिही शै का मतलब समझते हैं आप, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। ये सारी आयतें आपने सुनी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कभी? नहीं, मेरा सवाल है कि ये लईसा कमिस्ली सही ये आयत है, उसमें और नथिंगनेस में क्या फर्क है? नथीनेस से क्या मुराद ले रहे हैं आप? नथिंगनेस का मतलब जो किसी की तरह ना हो उसको नथिंगनेस कहते हैं। नथिंगनेस किसी की तरह होती है? नथिंगनेस के ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, वो किसी की तरह नहीं होती है। नथिंगनेस क्या होता है? उसको ना वो चलता है ना तो वो आप कह रहे हैं कि अल्लाह चलता है। ताला नथिंग है? बहुत सारे लोग खुदा को नथिंगनेस भी मानते हैं कि खुदा मतलब कि जो किसी की तरह नहीं है, इसका मतलब वो अरे भाई नथिंगनेस आप है। क्या हैं? आप मिर्जा अली इंजीनियर के फॉलोवर हैं, मुल्हिद हैं, क्या हैं आप? कोई एक नहीं, अकीदे पे रह करके बात करें ना, आप नथिंगनेस की बात कहाँ से यहाँ पर ले आए? ये अल्लाह हिंदू ताला की बात किसी है, की हिंदू तरह कहते नहीं है, हैं। इससे ये कहाँ मुराद हो गया कि अल्लाह ताला नथिंग है? नहीं, ये किसी की हिंदू की तरह बात ना है। होना और कुछ भी ना होना, दोनों में फर्क होता है। नथिंगनेस का मतलब होता है अल्लाह कुछ है ही नहीं। अल्लाह ताला है, मौजूद है अल्लाह ताला। ये नहीं कहा गया कि नथिंग, अल्लाह ताला कुछ है ही नहीं। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला नथिंग है। अल्लाह ताला किसी की तरह नहीं है। ये नहीं कि अल्लाह ताला है ही नहीं सिरे से। नथिंगनेस का मतलब होता है कोई है ही नहीं मौजूद, मादूम है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला मादूम है। अल्लाह ताला मौजूद है लेकिन किसी के जैसा नहीं है, ये कहा गया अल्लाह ताला के बारे में। नहीं, ये जो हिंदू है वो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण। ऐसा खुदा जिसमें कोई गुण ना हो, जैसे हम अल्लाह नहीं, में हम से ऐसा नहीं अल्लाह कहते, की हम ये कहते हैं अल्लाह ताला में सारे कमालात पाए जाते हैं। अल्लाह ताला में सारे कमालात पाए जाते हैं और वो कमालात में कोई अल्लाह ताला के बराबर नहीं हो सकता है, उन कमालात में कोई भी अल्लाह ताला की तरह नहीं हो सकता है। जैसे हिंदू है वो तीन तरह को खुदा को डिफाइन करते हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार, तीन तरह का कहते हैं। अब ये निर्गुण जो निराकार है, इसका मतलब ये है कि ऐसा खुदा जिसमें कोई सिफात ना हो और वो निराकार हो। दूसरा ये तरीका ये बताते हैं कि ऐसा नहीं नहीं खुदा नहीं, ये मतलब नहीं होता है, ये मतलब हम नहीं ये नहीं होता मानते। निराकार का। नहीं, ये मतलब भी नहीं होता निराकार का। जिसका कोई आकार नहीं है ये मतलब है, जिसकी कोई सिफात नहीं है निराकार का, ये मतलब आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसको लाके बताना पड़ेगा। निराकार की जो उनके यहाँ तशरीह है वो तो ये है कि जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, वही मैं जिसके पास बता कोई रहा हूँ, वही आकार ना बता हो। रहा हूँ। ये कहना कि जिसके पास कोई सिफात ना हो निराकार का, ये मतलब फिर उस जो है इलाहियाती सिस्टम को यहाँ बयान करने की क्या जरूरत पड़ गई, जो गैर मुस्लिम नहीं, यानी उस उनके इलाहियाती सिस्टम को यहाँ पर कुरान से मिलाने का क्या मसला है? ये इंजीनियर की जो बात हो रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि जो इंजीनियर ने जी कहा कि जैसे इंसान में इल्म है, कुदरत है, इंसान देखता है, सुनता है, सारी जो सिफात है वो सारी सिफात जो है वो तो इंसानों भाई, वाली है।
अब सारी नहीं इंसानों वाली सरफराज सिफात भाई ने वो तो बहुत क्लियर भाई तरीके से देखिए, बता आपको मैं दिया आपको एक कि मिसाल से समझाता अल्फाज हूँ। में अल्लाह ताला देखिए, कुरान मजीद की जो एक आयत है ना, अल्लाह ताला ने जिसमें जन्नत की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया व उतूबिही मुतशाबिहा, कि जन्नत में जो है ना इंसान को वो नेमतें दी जाएंगी जो दुनिया की नेमतों के जैसी होंगी। उसके बारे में गालिबन हजरत इब्ने अब्बास का एक कौल है कि लैसा फी दुनिया मिम्मा फिल जन्नति इल्लल अस्मा, कि दुनिया में जो कुछ भी है ना जन्नत में, उनमें से कोई भी चीज जन्नत में नहीं है, सिर्फ नाम दोनों के मुश्तरक है। नाम यहाँ के शहद को भी शहद कह दिया गया, वहां के शहद को भी शहद कह दिया गया, दोनों की हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ है, बस नाम मुश्तरक है। तो अल्लाह ताला के इल्म को इल्म कह दिया गया, हमारे इल्म को इल्म कह दिया गया, ये नाम मुश्तरक है, इसमें कदरे मुश्तरक पाया जाता है बस। बाकी अपनी हकीकत के मामले में बंदा अल्लाह ताला के बिल्कुल मुशाबे नहीं है, अल्लाह ताला बंदे के मुशाबे नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी जो मोतजिला के अकाइद से थी, उसमें मोतजिला ने जो अल्लाह की जो सिफात का जो इनकार किया था, उसकी वजह यही थी कि ये सारी जो सिफात तो है कौन वो सिफात का इंसानों इनकार से कर रहे हैं? ताल्लुक- अल्लाह जो की सिफात का मोतजिला इनकार ने- कौन कर रहा है? हम सिफात का इनकार नहीं कर रहे, हम सिफात में तशबीह का इनकार कर रहे हैं। जो कहता है अल्लाह ताला मिनी गॉड है, वो अल्लाह ताला को मखलूक को अल्लाह से तशबीह दे रहे हैं, हम तशबीह का इनकार कर रहे हैं, सिफात का इनकार थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मोतजिला ने जो सिफात का जो इनकार किया था अल्लाह की, उसकी वजह यही थी कि चलिए ये सारी अगले हफ्ते सिफात आप इंसानों आइएगा, वाली- ये लंबी बहस जाएगी आपकी, अगले हफ्ते आइए, आप इनकी देखिए, गुफ्तगू लंबी करेंगे हम अभी लोग। अकीदे की बहस में एक बहस मिलती है कदरे मुश्तरक की, कदरे मुश्तरक वाली बहस आप पढ़ेंगे, खासतौर पे इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, आप थोड़ा पढ़े लिखे आदमी दिख रहे हैं, तो आप इमाम इब्ने तैमिया की जो किताब है उसमें कदरे मुश्तरक की बहस खोल करके पढ़ें, आपको तब वो बात वाज़ेह होगी कि बास चीजों में नाम के एतबार से ना एक चीज मुश्तरक होती है तो दोनों के लिए एक तरह का नाम इस्तेमाल किया गया। बाकी अल्लाह ताला अपनी सिफात में मखलूक के मुशाबे नहीं है, ये बहुत वाज़ेह बात है भाई। तो बाज आप अच्छा, तो फिर जन्नत में ही इस मिनी गॉड क्यों कहा? तब तो दुनिया में भी इंसान को मिनी गॉड कह सकते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में भी इंसान के अंदर वो सिफतें पाई जाती हैं नौजुबिल्ला जो अल्लाह के यहाँ पाई जाती हैं, तो क्या दुनिया के इंसान को भी मिनी गॉड कहा जा सकता है? बल्कि इंसान ही को क्यों, अल्लाह ताला को समीओ बसीर कहा गया, जानवर भी समीओ बसीर होते हैं, तो क्या जानवरों को मिनी गॉड कहा जा सकता है? एक बात का जो अल्लाह के पास के भी सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप अगर इसलिए कह रहे हैं नौजुबिल्ला कि आपको ये लगता है कि जन्नतियों की कुछ सिफात, नौजुबिल्ला बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं ये आपकी बात पर कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं जन्नतियों के बाद सिफात ऐसे हैं जो नौजुबिल्ला अल्लाह ताला की सिफात के मुशाबे, इसलिए उसको मिनी गॉड कहा जा सकता है। फिर आप कह रहे हैं दुनिया में भी इंसानों में वो सिफात पाई जाती हैं, बल्कि जानवरों में भी वो सिफात पाई जाती हैं कि जानवर भी जो है वो देखता है, सुनता है, तो नौजुबिल्ला क्या इस बुनियाद पर हम जानवरों को मिनी गॉड कह सकते हैं? अब ये लॉजिकली एक बात को हम ना माने तो ये बात अलग है, लेकिन लॉजिकली बात तो ये सही मालूम होती है कि दुनिया के जानवरों को भी मिनी गॉड कह सकते हैं। अल्लाह की जो सिफात है वो तो उसमें है ही, इंसान के अंदर में तो भी अल्लाह आप की कह रहे हैं सिफात है। जानवरों को भी मिनी गॉड कह सकते हैं, यानी अब अल्लाह ताला पास के अलावा काबिल है। पूरी कायनात मिनी गॉड है। अभी यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं जो हमारे एडिटर हैं मैं चाहता हूं ना ये वीडियो आप महफूज करें, और हर वो बंदा जो कहता ना कि मिर्जा अली इंजीनियर बहुत बड़ा तौहीद का दाई, उसको ये वीडियो दिखाएं। ये उसके कॉल का नतीजा निकल रहा है कि ये बात जो काफिर भी नहीं कहता, एक ईसाई से भी पूछो ना तो वो भी नहीं कहेगा कि दुनिया के सारे लोग गॉड है, वो भी कहता है गॉड सिर्फ एक है। एक हिंदू भी ये नहीं कहता कि गॉड बहुत सारे हैं, वो भी कहता है कि गॉड सिर्फ एक है। ये मिर्जा अली इंजीनियर का फॉलोवर ये कह रहा है कि जानवर भी गॉड है। नहीं, मैं इसको मैं इसका रद्द नहीं करूंगा, मैं इसका रद्द नहीं कर, इतनी नामाकुल चीजों का हम रद्द नहीं करेंगे। ये आपने हम ये दिखाएंगे, ये जो लोग कहते हैं ना कि मिर्जा अली इंजीनियर बहुत बड़ा तौहीद का दाई है, आपकी ये वीडियो महफूज करके हम दिखाएंगे उन लोगों को कि ये वो तौहीद है जो मिर्जा अली इंजीनियर ये सिखा रहा है अपने फॉलोअर्स को कि दुनिया में जानवर भी गॉड है। जो ये कह रहे हैं ईसाई भी कहता है कि गॉड सिर्फ एक है, बच्चा भी कहता है गॉड ऊपर है, सिर्फ एक है। ये मिर्जा अली इंजीनियर की तौहीद है और ये उसके फॉलोवर है जो ये तौहीद सीख रहे हैं। मैं इसका रद्द ही नहीं करूंगा, मैं नहीं समझता कि इसका रद्द भी करने की जरूरत है कि एक आदमी यहाँ पर स्ट्रीम में आकर के मिर्जा अली इंजीनियर का फॉलोवर ही कहता है जानवर भी मिनी गॉड है। मैं इसका रद्द ही नहीं करूंगा, मैं नहीं समझता कि इसका रद्द भी करने की जरूरत है। बात हो गई आपसे काफी, मैं इसका रद्द ही नहीं करूंगा, रद्द करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल कर रहा हूँ खाली। आप उसी के कॉल की बुनियाद पर लेकर क्या रहना, पूरा कुरान हदीस में कहीं पर है मिनी गॉड का लफ्ज? ये पूरा जो अकीदा आप खड़ा कर रहे हैं, ये पूरा अकीदा जो आप खड़ा कर रहे हैं, क्या कुरान और हदीस में मिनी गॉड कहा गया है जन्नतियों को? ये किसका कॉल है मिनी गॉड? किसी सलफ में से किसी ने कहा है कि मिनी गॉड हो जाएंगे जन्नती? किसके कॉल की बुनियाद पर ये अकीदा आप लेकर के आगे कि लॉजिकली तो जानवरों को भी मिनी गॉड कहा जाएगा? ये किसके कॉल से आप निकाल रहे हैं सारे ये जो लवाजमात आपने निकाले?
कुरान और हदीस में इंसान को समी और बसीर तो कहा गया है ना, कि इंसान है उसके पास भी इल्म है। तो मिनी इंसान गॉड ही है, क्यों नहीं वो कह दिया गया भाई? मिनी गॉड कहा गया है। समीउ बसीर का मतलब मिनी गॉड होता है। जितनी बात इंसान जो आपको जानता कुरान है, हदीस में ये नहीं दिख रहा लैसा कमिस्ली शै, और ये दिख रहा है कि कुरान हदीस में समीउ बसीर, जहां पर समीउ बसीर कहा गया उससे आगे पीछे क्या कहा गया? समीउ बसीर जहां कहा गया है वही तो कहा गया है। लैसा जैसे कमिस्ली बरेलवी शै है, वह समीउल बसीर, अल्लाह ताला को समीउ बसीर भी कहा गया है और लैसा कमिस्ली भी कहा गया है साथ में। आपको इतना जैसे तो दिख जा रहा है बरेलवी कि है, समीउ बसीर कहा गया है, ये नहीं दिख रहा है लैसा कमिस्ली कहा गया है। हल तालमु लहू समिया नहीं दिख रहा आपको, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद नहीं दिख रहा आपको। जैसे बरेलवी काफी है, है। वो अरे भाई ये क्या जाति और दिमाग असाई खराब हो की गया, बात बस हो गया, करते हैं, अगली हिस्ट्री में जाति और आइए आप। असाई की बात करते हैं, कि वो ये मैंने कहते हैं कि आपको माना सूर्य वाजा होगा कर दिया कि जब आप मैंने जाति आपको मानोगे। मैंने वाजे कर दिया आपको कि बंदों की बात सिफात और अल्लाह ताला की बात सिफात को एक नाम दिया जाता है। नाम मुश्तरक होने का ये मतलब नहीं होता है कि बंदा अपनी सिफात में अल्लाह के मुशाबे है। नाम मुश्तरक होने का ये मतलब नहीं होता है कि बंदा अपनी सिफात में अल्लाह ताला की मुशाबे। एक माना में कदर मुश्तरक, माना में कदर मुश्तरक पाई जाती है, सिफत में मुशाबहत नहीं पाई जाती है। दोनों के माना, दोनों में जो समा का जो माना अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है, समा का जो माना बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये माना में इश्तिराक है, सिफत में इश्तिराक नहीं कि नौजुबिल्ला बंदा जो है वो अल्लाह ताला की तरह है। बस दोनों के माना एक हैं, बस ये माना में इश्तिराक है। ये लफ्ज इसीलिए अल्लाह के लिए और बंदे के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दोनों के माना मुश्तरक हैं। खारिज में कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि बंदा अपनी सिफत में अल्लाह की मुशाबे हो या नौजुबिल्ला अल्लाह ताला अपनी सिफत में बंदों की मुशाबे हो। अल्लाह की अता से कोई आदमी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। सुनिए सुनिए भाई, आप इस बात को समझिए, अल्लाह ताला के सुनने और हमारे सुनने में कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह हमेशा से सुनता है, हमेशा सुनेगा। हमारी शुरुआत है, हमारी एंडिंग है। हम डिपेंड होते हैं अल्लाह ताला की मर्जी से। अल्लाह ताला ने जो हमें ताकत दी, हम उससे एक महदूद तौर पर सुनते हैं। हमारा सुनने की लिमिट है। मैं अगर माइक म्यूट कर दूं, आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। अल्लाह ताला वो है जो गूंगे की पुकार सुनता है। करोड़ों इंसान एक टाइम पे पुकारे, अल्लाह सबको सुनता है, दिल की बात सुनता है। अल्लाह ताला खुद उसकी ताकत है। बंदे क्या है, अल्लाह ताला की ने दिया वो चीज, जितना दिया उतना सुन सकते हैं, लिमिटेड ताकत है। बहुत सारे फर्क है। तो इसमें शेख ने तो बहुत अच्छे से समझाया और समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करिए, अगली स्ट्रीम में मिलेंगे। हाँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं। iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।